अच्छा बेटा, हमारे पास केस स्टडी गिवन है कि increasing public sector debt is a good policy. Say March 23, paper 4, variant 2. अच्छा भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार अगर हमारे पास जो है वो अगर हम पब्लिक सेक्टर डेट को इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अ, अच्छा होगा, फेवरेबल होगा. Politicians do not usually think it is a success to borrow a large amount of money. क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग जो है वो बोरोविंग की तरफ अगर जाएंगे तो इंटरेस्ट और रीपेमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा. In June 2020, when the economy was approaching a recession, the UK borrowed 5 times as much as it did in June 2019. यूके ने बहुत ज्यादा जो है वो बोरो करा. सही है, जब उनकी इकोनॉमी सर रिसेशन की तरफ जो है जा रही. This made the government debt only just a little less than the total size of the economy. The ratio of the public sector debt to GDP was 99.6% और सबसे ज्यादा था अगर हम लोग देखें पिछले 60 सालों में. पब्लिक सेक्टर नेट बोरोविंग इज शोन इन फिगर 1. सर आपके सामने है कि जून 19, अगर मैं ये जनवरी 20 की बात करूं, सर यहाँ पे ये क्या है भाई, अपने पीक पे है. सही. अच्छा, ये क्या है आपकी पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग. पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग, borrowing is what the government ought to be doing in a recession in order to finance the spending used to boost aggregate demand. It's obvious कि भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं रिसेशन की, तो सर मुझे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड आई विल हैव टू यूज expansionary policies को. The question in 2020 was how long could the borrowing of such large amounts continue. कितनी आप कितना बोरो करोगे यार फ्यूचर के अंदर. सही है, क्योंकि जितना ज्यादा बोरो करोगे, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर you will be able to boost up your aggregate demand, but in the long run you will have to repay the cost too. सही, clear. अच्छा, there can be problems with a large public sector debt. An expansion of government borrowing might increase interest rates if investors require more compensation. So, because they think the risk of holding government bonds has increased. So, this interest rate rise would affect the rest of the economy. पूरी इकोनॉमी को कोई ना कोई जो है वो फायदा या नुकसान हो रहा होगा. There is a theoretical objection that a government borrowing could crowd out the private sector. अच्छा, especially when the economy is close to its productive capacity and unemployment of resources is low. अच्छा, आगे चलते हैं भाई. क्राउड आउट का मतलब सर, क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है. सही है, और सर इससे गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन जो है वो आप एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे होते हैं. सही. अच्छा, this would not happen when there are unemployed resources in a recession. The UK finance minister suggested that a high ratio of public sector debt to GDP was justified. It is the stability of the ratio that is important. This reasoning can be justified. उसने बोला भाई सही है, कोई आपसे कोई इशू नहीं है. सही है, कोई मसला नहीं. Reducing government spending in order to reduce borrowing was risk stopping any recovery. अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आज कम कर देते तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकेंगे अपनी इकोनॉमी को. सही. Economic recovery is necessary to restore economic activity, which in turn will restore the government finances.
सही है। अच्छा, however economists cannot know any precision what the limits of the public sector borrowing should be। उनको पता नहीं कि हमें कितना जो है वो बोरो करना चाहिए। and for many years Japan has maintained a ratio of public sector debt to GDP of over 200% with no difficulty। सही है, but what is suitable for Japan may not be suitable in a different type of economy। हर इकोनॉमी डिफरेंट टाइप की होती है, जापान के लिए सूटेबल है तो जरूरी नहीं आपके लिए भी ये चीज जो है वो सही हो। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ रिसेशन, 3 मार्क का सवाल है। अब रिसेशन की जब बात करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि भाई रिसेशन इज where there is existence of negative growth in GDP या आउटपुट। सही है। दूसरा, रिसेशन इज जो कि आपका हो रहा है भाई ओवर दी 2 quarters। Analyze why government borrow and why it is said that a government should increase spending in a recession। गवर्नमेंट क्यों बोरो कर रहा है और हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए अगर वो रिसेशन के टाइम पीरियड पे है? देख लेते हैं जरा। गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है ताकि सर वो क्या कर सके, कवर कर सके एक्सपेंडिचर। सही है। दूसरा, ओवर 2 क्वार्टर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? यार ओवर 2 पीरियड सही है, मतलब 6 महीने से ऊपर तक जो है वो क्या हो रहा है, अगर रिसेशन अगर हो रहा है ना तो फिर आप रिसेशन उसको बोलोगे। सही है। गवर्नमेंट सर बोरो करती है ना सर, इसीलिए करती है कि यार वो अपने खर्चे वगैरह को जो है वो कवर कर सके। सही है। जो कि सर आपके टैक्सेशन से कवर नहीं हो रहा। दूसरा, गवर्नमेंट बोरो करती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डेफिसिट अकरिंग। डेफिसिट हो रहा है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है। दूसरा, जब गवर्नमेंट बोरो करेगी, अभी तो हमने बता दिया एनालाइज व्हाई गवर्नमेंट बोरो, यहां तक हमने बता दिया अपना आंसर। अब व्हाई इट इज सेड दैट अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग। देखो जब तुम स्पेंडिंग को इंक्रीज करोगे ना तो इससे होगा पता है क्या, कि हमारे पास जो है वो इनकम बढ़ेगी, मेरे पास जो है वो आउटपुट बढ़ेगा, वही मेरे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सही है। और सर क्या होगा, मेरे पास जो है वो सर मल्टीप्लायर जो है वो ज्यादा होगा। सही है। दूसरा सर इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। सर कंसिडर व्हाट डेफिसिट, इज मेंट। सर ये जो पॉइंट आपने रिड्यूस द डेफिसिट लिखा तो इससे तो लायबिलिटी उसकी बढ़ नहीं जाएगी? क्या बढ़ जाएगी? मतलब गवर्नमेंट जैसे बोरो कर रहा है तो उससे बैलेंस गवर्नमेंट ऑफ पैसे ले पेमेंट। रहा है, गवर्नमेंट पैसे ले रहा है, सवाल क्या है, अफेक्ट्स नहीं पूछे, बोले क्यों बोरो करती है भाई, वाई, वाई गवर्नमेंट बोरो। अगर भाई एक सिंपल सी बात है ना, एक बंदा बोलता है यार तुमने उधार क्यों लिया है भाई, मैं बोला मुझे घर लेना था इसलिए उधार लिया है, आप ये थोड़ी बोलोगे यार कि यार मैंने इसलिए उधार लिया था क्योंकि मुझे उसे रीपे करना था। नहीं 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 भाई, मैंने उधार इसलिए लिया था क्योंकि मुझे जो है कोई एसेट को बाय करना था। सही है। आगे चलते हैं। कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज गवर्नमेंट बोरोइंग could crowd out the private sector। अच्छा भाई, अब सोचे जरा इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई।
देख लेते हैं जरा। हमारे पास जो है गवर्नमेंट बोरोइंग could crowd out the private sector। इसका मतलब ये है कि जहां पे गवर्नमेंट बोरो कर रही है, सही है, टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज, सही है। अच्छा भाई, अब होता पता है कि हमारे पास जो है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है? लोनेबल फंड्स इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो है ना, और इंडिविजुअल्स, हम लोग, हमें एक्सपेंसिव लगेगा टू बोरो मनी। जिससे क्या होगा, हमारी जो विलिंगनेस और हमारी जो एबिलिटी है टू इन्वेस्ट एंड कंज्यूम, उस पे अफेक्ट आएगा। जिससे होगा पता है क्या, कि प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटी है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, सही है, क्योंकि फर्म सर क्या करेंगी, डिले कर देंगी या कैंसिल कर देंगी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, और इंडिविजुअल साथ साथ कंजम्पशन जो है उसे कम कर देंगे, सही है। क्या इतनी बात समझ आई? इंडिविजुअल्स कंजम्पशन क्यों करेंगे? बेटा चलिए समझा दें। ये मैं बता देता हूँ। देखो होता पता है क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, फाइनेंस कर रही है भाई, गवर्नमेंट बोरो करती है और जितनी भी एक्टिविटीज है उसे खुद ही जो है वो स्पेंडिंग कर रही है, सही है। गवर्नमेंट बोरोइंग का मतलब है पब्लिक सेक्टर बोरोइंग, सही है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट बोरो कर रही है, सही है। और सर क्या कर रही है भाई, स्पेंडिंग जो है वो कर रही है। इससे सर क्या होगा, आपकी जो लोन्स वगैरह है उनकी जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी यार, आपकी बढ़ जाएगी। जब लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे होगा पता है कि हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो आपके पास जो है वो प्राइसेस जो है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है। रेट बढ़ जाएगा तो अब मेरे जैसा बंदा जिसको बैंक से लोन लेना था, वो सर अब लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो रीपेमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई है। डन। फिर होगा बताइए क्या, हमारे पास सर जो है एज अ कंज्यूमर भी जो है मैं जो है वो खर्चा जो है वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर सेविंग्स की तरफ जो है वो जा रहा हूँ, बोले। सर क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बोरोइंग ज्यादा हो रही है ना, तो एक्टिविटी ज्यादा होंगी उसमें, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए। नहीं। असल नहीं, वो पता है क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ना वो ये है कि गवर्नमेंट बोरोइंग और साथ साथ आपका ये सीन हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो बोरोइंग करके स्पेंडिंग कर रही है। हाँ, जब बोरोइंग करके स्पेंडिंग करेगी ना तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है ना, सही से। ये मसला है। अगर मैं इसकी डायग्राम ऐसी ड्रॉ करता हूँ कि सर ये मेरे पास है एक अदद, ये सर कर्जा लेके इन्वेस्ट कर रही है क्या गवर्नमेंट? हाँ हाँ, कर्जा लेके इन्वेस्ट कर रही है। तो सर केस किससे ले रही है? क्वांटिटी ये बैंक से लेगी,
सही है, ये लेगी आपकी एड्स वगैरह की तरफ जाएगी। सही से। सर रिन्यूएबल फंड्स तो वो होते हैं ना कि जो मतलब कि पीपल पे देते हैं फंड्स। देखो हमारे पास जो है होगा, पता है क्या, कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर सकती है किन लोगों से भाई, आपके पब्लिक सेक्टर के लोगों से भी बोरो कर सकती है। मेन मकसद यहाँ पे ये कि गवर्नमेंट सर क्या कर रही है, बोरो करके जो है वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो कर रही है। सही है? अच्छा, अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरो किया, तो डिमांड कर्व जो है वो आपका आउटवर्ड शिफ्ट मार रहा है। सही है? इससे सर क्या हो रहा है मेरे पास जो है वो, अगर देखो तो रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है। और आपको पता है कि सर अब जब हमारे पास जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट, और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो सर ये मेरे पास क्या हो रहा है यार, कि जब इंटरेस्ट रेट इतना था, तो सर मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी, सर क्या हो रही है अब इन्वेस्टमेंट, पहले यहाँ पर थे आप, तो इन्वेस्टमेंट मैं जो है वो कर रहा था, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया है तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सर क्या हो गई है, कम हो गई है। डन है? क्लियर हो गई बात? ओके हो गया? चले आगे। अच्छा, अब हम लोग जो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। assess whether evidence in the article makes a conclusive case that a high level of government borrowing is an effective policy. चलो 1 मिनट दे रहा हूँ थोड़ा सोचना, फिर मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। हाँ मैं इसका आता हूँ। इसने बोला है एविडेंस इन द आर्टिकल makes a conclusive case that the high level of government borrowing is an effective policy. ऊपर केस से आपको बताना है। अब हुआ ये कि हमारे पास, अगर मैं ऊपर केस से देखूं तो रिसेशन आपके पास जो है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिसेशन। अब जब रिसेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, पावर ही नहीं है। सही है? तो वो कैसे लैंड करेंगे, तो सर यहाँ पे हमारे पास क्राउडिंग आउट का सीन तो कोई हो ही नहीं सकता। सही है? दूसरा, ऊपर लिखा हुआ है कि यार हाई डेट इज ओके टू हैव इन एन इकोनॉमी। हाई डेट का इतना बड़ा कोई इशू जो है वो नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जीडीपी इज स्टेबल। सही है? अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये इसने बात कर दी, हाई डेट इज ओके टू हैव एन इकोनॉमी अनटिल एंड अनलेस जीडीपी इज स्टेबल। अगर मैं ऊपर ग्राफ की बात करता हूं तो मुझे ये बताइए क्या जीडीपी आपका जो है वो स्टेबल है? सही है? हमारा जो जीडीपी है सर वो स्टेबल नहीं है। और सर क्या हुआ है यार, तो डेट का जो ग्राफ है ऊपर, सॉरी बेटा, डेट का जो ग्राफ है ये स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे है, कभी पीक पे है और कभी वापस से नीचे जाके ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर कोई रिलेशनशिप हमें हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं। और इसने बोला भी है कि अभी हाईएस्ट हुआ है 60 सालों के अरसे में। तो
debt is not stable in the economy. सही सर है? आप बता सकते हैं डेट, हाई डेट और जीडीपी का पॉइंट? सर हाई डेट इसने बोला कि हमारे पास जो है हाई डेट हो सकता है एक इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसकी भाई, जापान की, जापान इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू विद हाई डेट। सही, बट उसकी इकोनॉमी कंप्लीटली सर क्या है, डिफरेंट है। सही है, वहां पे क्या पता आपका जो डेट है वो स्टेबल हो, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी है ही नहीं ना डेट में। क्या बात समझ आई? सर फिर डन। स्टेबल डेट का मतलब वापस समझा दें एक दफा? सर स्टेबल ये होता है कि सर हमारे पास जो डेट बढ़ नहीं रहा होता, सही, एक कांस्टेंट रेट पे चल रहा होता, या ऊपर जा रहा होता तो कांस्टेंट रेट पे जा रहा होता, नीचे आ रहा होता कांस्टेंट रेट पे आ रहा होता। सही मतलब है? एक डेट ले रहे हैं बट एक एक कांस्टेंट अमाउंट पे ले रहे हैं, बहुत ज्यादा है नहीं बहुत ज्यादा कम नहीं। बहुत, ये ये वाली जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा ले रही है डेट। सही है, कांस्टेंट अमाउंट पे नहीं। अगर आप इस ग्राफ को ही देखें तो ये कांस्टेंट है क्या, ये एक ही उस पे जा रहा है क्या? नहीं, चेंज हो रहा है बार बार। सही है। सर आपने कैसे एनालाइज करा ऊपर डेटा में से कि जीडीपी यहाँ पर मतलब कि वो नहीं हो रही? क्या नहीं हुई? जैसे आपने इस डेटा में से कैसे, कहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जीडीपी बढ़ नहीं रही, या ये एक सही वो नहीं है उसके लिए, कि अभी भी वो फेस कर रहे हैं रिसेशन वगैरह? सर ये जो इन्होंने डेप लिया है कि ये सही नहीं था? हाँ, ये सब लिखा हुआ है ना, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इज अप्रोचिंग अ रिसेशन। सही है भाई। आ जाए दूसरा, हमने देखा कि बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो सर इंक्रीज हो गए। सही है, जिससे सर क्या होगा, मेरे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट पे जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। सही। अच्छा, अब इसने आपको बोला है कि आपको ये बताना है कि आर्टिकल मेक्स अ कॉन्क्लूसिव केस या नहीं। कॉन्क्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक फाइनल फाइनल डिसीजन की तरफ आप पहुंच चुके हो या नहीं पहुंच चुके। कॉन्क्लूसिव केस का मतलब ये होता है कि अब जो है वो एक प्रॉपर आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सही है, देयर इज नो रूम फॉर डिबेट और एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। सही है, द डिसीजन इज फाइनल। सही है, द डिसीजन इज प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। डन। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं क्लियर नहीं हूं अपनी बात से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एक मार्क जो है वो मिलेगा, वो उसका मिलेगा कि आपका जो एविडेंस है वो इज नॉट गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर, और एविडेंस इज इनकॉन्क्लूसिव। सही है सर, आपको एक मार्क जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो आपने पहला पॉइंट लिखा है